Hello, friends. Welcome once again. I conduct this program called Self Management Leadership, which is about life and it teaches about life skills. The top 10 life skills recommended by the World Health Organization are as under problem solving skills, decision making skills, critical thinking, creative thinking, self awareness, empathy, interpersonal relationship, authentic communication skill, stress management, yeah, stress resilience, and emotional resilience. Now, all these topics I've covered as part of my, SML videos. Most of them, in fact, critical thinking and creative thinking. I keep calling it Sarp Drishti and Garud Drishti. There is a video by the name Self Awareness Key to Success. डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है, 7 स्टेप्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर भी बनाया हुआ है, हार्मनी इन रिलेशनशिप के नाम पे, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल, एनी वे द क्लासेस आर बीइंग नो कंडक्टेड रेगुलरली, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस करके एक वीडियो रिसेंटली अपलोड किया है विच आई कंडक्टेड फॉर द जयपुरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट. सो if you want to know what are the various modules that I conduct under the self-management leadership, I'll request you to watch this video, SML Mind Matters. उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगा. ये वीडियो है SML Mind Matters. So those of you are interested, you can also attend these classes, self-management leadership classes. और इस क्लासेस का यू कैन सी वेरियस ऑडियंस आर देयर, स्टूडेंट्स आर देयर, फैमिलीज आर देयर, कपल्स आर देयर, एंड आई कंडक्ट इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो लाइक जयपुरिया ग्रुप का भी रिसेंटली आई डन. आई बी कंडक्टिंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम सून. सो those of you are interested, the next 2 weeks of self-management leadership classes will be starting from 19th July to 31st July. अगला बैच होगा 26 जुलाई से 7th August. Next batch will be from 2nd August to 14th August, 9th August to 21st August, 16th August to 28th August, and 23rd August to 4th September. Any one of you is interested, you are most welcome to join these batches. These are the starting date 19, 26, 2nd, 9, 16th August and 20th August. These are the starting date for 2 weeks batch. And आपको पता है कि there are schools that have taken over, so you can, parents can attend, students can attend, professionals can attend, civil service aspirants can attend who wants to do better in the CS4 paper, that is values and ethics के ऊपर, and people who are going for service selection board interview can also attend. This will act as a foundation course. जैसे एक बड़ा बिल्डिंग बनाना होता है तो पहले फाउंडेशन बनाना है. This will work as a foundation course, so most of you who are going for all these things, you're most welcome to attend this. And to register for this batch or to know more details about this batch, you can WhatsApp me at 8275577650. इस नंबर पे मैसेज करना and you'll get the details. Next batch is coming from tomorrow onwards, that is 19th July batch. You can also join the subsequent batches as per the schedule given here. Now today we will be, through this video, covering a specific issue that is part of the problem solving and decision making में एक issue आता है, that's conflicts and resolution of conflict. Conflicts का मतलब मतभेद आता है या द्वंद्व आता है. So we will be talking about today conflict resolution skill. Conflict resolution skill, which is part of the problem solving or decision making प्रोसेस में आता है. जो हमारे अंदर के द्वंद्व है उन्हें हम कैसे हैंडल करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल. सो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, विल डू इट एज अ सीरीज फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन. कॉन्फ्लिक्ट इज द अरोजल ऑफ 2 or more स्ट्रॉन्ग मोटिव्स दैट कैनॉट बी सॉल्व्ड टुगेदर. क्या मतलब है? द्वंद्व या आंतरिक द्वंद्व जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, मतभेद जो होता है, वो उसकी उत्पत्ति होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विकल्प या मोटिव हमारे सामने आता है और हमें समझ में नहीं आता कि इसमें से पहला ले या दूसरा ले या तीसरा ले. सो और आसान भाषा में बोला जाए तो कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द नेसेसिटी of choosing between 2 needs or goals or option. Usually the choice of one alternative
would mean frustration with regard to the other. For example, एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं दो, पिंकी भी है, रिंकी भी है. अब आपका शादी का उम्र आ गया और आप दोनों को बहुत पसंद करते हो, लेकिन शादी आप एक ही से कर सकते हो. सो मम्मी प्रेशर डाल रही है कि बेटा जल्दी डिसाइड करो किससे शादी करना है. सो रिंकी भी रेडी है, पिंकी भी रेडी है. नाउ यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट कि आपको समझ नहीं आ रहा रिंकी से शादी करो या पिंकी से. दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट. रिंकी को सेलेक्ट करो तो पिंकी को छोड़ना पड़ेगा, पिंकी को सेलेक्ट करना तो रिंकी को छोड़ना पड़ेगा. सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आप लोगों के इसमें सपोज आपको मोटरसाइकिल खरीदना है और आपका बजट है 60,000 रुपये. अब 60,000 में 4 टाइप के मोटरसाइकिल आते हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा कुछ ना कुछ खराब है. नाउ यू गॉट मल्टीपल ऑप्शन, मोटरसाइकिल 1, 2, 3 एंड 4 चारों मिल सकता है, सब में कुछ ना कुछ अच्छा है. बट नाउ यू आर कन्फ्यूज कि ये लूँ ये वाला लूँ. कॉन्फ्लिक्ट है ना. सो कॉन्फ्लिक्ट इज द अरोजल ऑफ 2 or more strong motives और डिज़ायर्स और ऑप्शन दैट कैनॉट बी सॉल्व टुगेदर. क्योंकि एक को लोगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा. आपको एनडीए में भी मिल गया, 10+2 टीएस में भी मिल गया, दोनों में मिल गया. एनडीए में 4 साल का ट्रेनिंग बट आप बैचलर डिग्री बनोगे, 10+2 में 5 साल का ट्रेनिंग लेकिन चौथे साल के बाद कमीशन ले लोगे और इंजीनियर बनोगे. एनडीए का नाम बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग का है. वेट, हाउ डू यू चूज इट? आपको एनडीए में भी मिल गया, आईआईटी में मिल गया. एनडीए में जाने से आपका पैशन है, 2 stars ऑन द शोल्डर. आईआईटी में जाने से आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे, मोटी कमाई कमाओगे. हाउ डू यू चूज इट? आपको सिविल सर्विस में मिल गया, एसएसबी में मिल गया. हाउ डू यू चूज इट? सो दीज आर कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन पीपल डिसएग्री ओवर. दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत वैल्यू बेस्ड काम करते हो, आपका एक दूसरा साथी है जो साम दंड भेद सब लगा लेता है, मतलब वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन मूल्यों को ताक पे लगाता है. कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. मम्मी पापा के बीच में झगड़े होते हैं क्योंकि कभी कभी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. दो व्यक्तियों का मोटिवेशन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग में भी डिफरेंट. एक बंदे को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दूसरे को वो लगता है. टीवी में मम्मी को सास बहू सीरियल देखना, पापा को क्रिकेट देखना. कॉन्फ्लिक्ट है ना. नेक्स्ट इज परसेप्शन. जीवन को देखने का दृष्टिकोण. मेरा दृष्टिकोण जीवन को देखने का, तुम्हारा दृष्टिकोण जीवन को देखने का अलग, जिसके कारण अगेन हमारे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. परसेप्शन का मतलब दृष्टि में प्रॉब्लम नहीं, दृष्टिकोण में. और हम अपने दृष्टिकोण को पकड़ के, बिलीफ सिस्टम को पकड़ के झगड़ा करते हैं. फॉर एग्जांपल, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट इज इट? बिलीव्स का कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से अच्छा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन जब हमारे अंदर इस तरह के आते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स में पहुंच जाता है. नेक्स्ट इज आइडियाज़ या ओपिनियन. मेरा आइडिया और तुम्हारा आइडिया दोनों कॉन्फ्लिक्ट ही है. मुझे लगता मेरा सही है, तुम्हें लगता तुम्हारा सही है. जब तक हम इसे रिजॉल्व नहीं करेंगे, दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. ओपिनियन, अभिप्राय में कॉन्फ्लिक्ट है ना. डिज़ायर्स ऑब्लिक नीड. मेरे डिज़ायर्स और तुम्हारे डिज़ायर्स में ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख के जॉब करूं, तुम्हारी इच्छा है कि खेलो कूदो, और तुम मुझे खींच रहे हो, मैं तुम्हें खींच रहा हूँ. दिस अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट. सो दीज कैन रेंज फ्रॉम, मतलब दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम द नीड टू फील सेफ एंड सिक्योर, है ना. कभी कभी हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, जानवरों में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. उन्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल पे काम करते हैं. एक शेर है, वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसे लगता है अगर और कोई आ जाए दूसरा शेर, वो मेरे खाने पे और मेरे लॉयनेस के ऊपर सब कंट्रोल करेगा. तो क्या करता है? लड़ता है, ताकि जब तक एक ना मरे दूसरा सेफ नहीं फील करता. दैट्स वेरी प्रिमिटिव. बट इंसानों में भी वो चीज़ है, टू फील सिक्योर. आई डोंट फील सिक्योर, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता हूँ, है ना. आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड. मुझे ऐसा लगता है मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो मैं झगड़ा करता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट करता हूँ. आई नीड टू बी वैल्यूड. So it can be my safety need, it can be my security need, it can be my respect ka need, it can be need for value, or it can be for need for greater closeness. मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तुम्हें दूर रख रहे हो. मैं मम्मी पापा के नज़दीक लाना चाहता हूँ, वो मुझे किसी कारण से दूर रख रहे हैं. इंटीमेसी के नीड्स, द रीजंस कैन बी एनी. सो कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर कैन बी एनी, बट यू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ इनर टर्बुलेंस. आपके आंतरिक मन में एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है.
And sometimes these differences, ये जो differences are value differences, motivation, perception, ideas, opinion, desired deeds, these differences appear to be trivial. कभी कभी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमारा conflict आ जाता है. But if we don't know how to handle them, they can trigger strong feelings. A deep personal need is often the core of the problem. इतना ज़बरदस्त conflict पैदा करता था छोटी छोटी बातें, because के नीचे एक अंडरलाइन जो उसके रूट कॉज है वो एक हमारा नीड है, जो एक कोर रीज़न है जिसके कारण वो ट्रिगर होता है. कभी कभी हमें वो पता चलता है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता, बट दोनों हालत में वी शुड नो द आर्ट ऑफ रिजॉल्विंग आवर इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि जीवन में, समाज में रहते हैं, वी लिव इन ए कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना आना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बेस्ड ऑन इट्स नेचर. फॉर एग्जांपल इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रा मतलब मेरे आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट. इन कॉन्फ्लिक्ट का जड़ मेरे बाहर नहीं है, ये मेरे अंदर ही है. फॉर एग्जांपल आई एम सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, आई एम सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. मुझे मैं अपने आप से प्यार नहीं करता. आई फील कि मैं ये ऑप्शन लेना पसंद कर रहा हूँ लेकिन ये ऑप्शन भी लेने से अच्छा लग रहा है. मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे बाहर नहीं है, मेरे अंदर की दुनिया में हो रहा है. सो व्हेन यू आर इन कॉन्फ्लिक्ट इन योर वर्ल्ड इनसाइड, यू विल बी इन कॉन्फ्लिक्ट इन वर्ल्ड आउटसाइड. तो मेरे आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट सभी, कभी कभी यू कैन हैव नेगेटिव फीलिंग फॉर योर सेल्फ. आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट लुक गुड, आई एम टॉल, आई एम लीन, आई एम मीन, आई एम फैट, और आई एम नॉट केपेबल. ये अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके कारण हम एक आंतरिक द्वंद्व में रहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल मतलब आपस में, मेरा मेरे माता पिता से, मेरा मेरी पत्नी से, पति से, बेटे से, ऑफिस में दोस्त से. तो इसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति है. अब ये ऑफिस का सीन भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, परिवार का हो सकता है, समाज का हो सकता है, बट इसमें एक से ज़्यादा लोग हैं. सो इंट्रापर्सनल मेरे अंदर ही चल रहा है, इंटरपर्सनल आपस में चल रहा है. दो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में दो लोग क्लैश में, पहले वाले में मैं खुद ही परेशान हूँ अंदर ही अंदर, कोई मुझे कर नहीं रहा लेकिन मेरे अंदर ही. और इसके अलावा तीसरा है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट. अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है ऐसे द्वंद्व जो मुझे प्रभाव पता चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का पता चल रहा है, लेकिन उसका मूल कारण या जड़ नहीं पता चल रहा क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में. फॉर एग्जांपल बचपन में बोल दिया था कि बेटा गुस्सा है तो एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, समाज में ऐसे नहीं करना. अब मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन वो सबकॉन्शियस ने मुझे प्रोग्राम कर दिया कि गुस्से को बाहर नहीं निकालना, गलत बात होती है. तो गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं उसको दबा के रखा हुआ, सप्रेस करके रखा हुआ है. तो मुझे पता नहीं चलता ये क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा दबाव महसूस हो रहा है, बिकॉज का मूल कारण मुझे दिखता नहीं है. दीज आर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट. तो हमारे बचपन से, अब समाज से, इधर उधर से इतना ज़्यादा फील्ड हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये कॉन्फ्लिक्ट का जड़ कहाँ से. वी ओनली एक्सपीरियंस द कॉन्फ्लिक्ट बट वी डोंट नो वेयर इज़ द सोर्स ऑफ इट, है ना. फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस वीडियो देखा होगा, वहाँ पे जोहारी विंडो है, वहाँ पे Q2 के बारे में बोला है, जिसको कि ब्लाइंड एरिया बोला जाता है, जहाँ पे आपको अपने ही व्यक्तित्व का कुछ डायमेंशन का नहीं पता चलता है, बट यू एक्सपीरियंस द कॉन्फ्लिक्ट. सिमिलरली Q4 which is unknown area, 90% of our personality is subconscious, unknown to us, which we don't know. लेकिन उसके अंदर इतने सारे इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लाइफ में अच्छा और बुरा प्रभाव डालता रहता है. तो हमें फ्रूट दिखता है लेकिन उस फ्रूट के रूट्स नहीं देख पाते. सच कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट. और हमें तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना आना चाहिए. तीसरे वाला थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज उसके लिए आपको बहुत इनवर्ड लुकिंग कैपेसिटी या इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की विधि आनी चाहिए, जो कि SML में हम आपको कराते हैं. लाइफ लाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, जोहारी विंडो एंड ऑल, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, लॉ ऑफ कर्मा, इन सब की मदद से. सो इसके अलावा और भी टाइप से हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे मन में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक कंपटीशन आता है, जहाँ पे हमें दो या दो से ज़्यादा डिज़ायरेबल गोल को चूज़ करना पड़ता है और दोनों अच्छे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको सिलिकॉन वैली USA में भी मिल गया और
बहुत बढ़िया एक इंडियन एमएनसी भी मिल गया, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में दोनों का पेमेंट सेम है, एक में यूएस से जाने को मिलेगा लेकिन माँ बाप से दूर हो जाओगे, एक में माँ बाप के साथ रहोगे, हिंदुस्तान में तनख्वाह उतनी मिल रही है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू, हाउ डू यू चूज? सो दिस इज अप्रोच जहाँ पे दोनों गोल डिजायरेबल है, दोनों गोल डिजायरेबल है। ए मिले तो भी अच्छा, बी मिले तो भी अच्छा, लेकिन मन करता है दोनों मिल जाए, वो होगा नहीं। पिंकी भी अच्छी लगती है, रिंकी भी अच्छी लगती है, लेकिन शादी एक से करना है, मन करता दोनों से कर लो, वो तो होगा नहीं। सो दिस काइंड ऑफ एन कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड अप्रोच, जहाँ पे दोनों डिजायरेबल है, दोनों डिजायरेबल है। एंड इसमें भी आपको स्ट्रेस आ सकता है, इवन दो द रेंज ऑफ स्ट्रेस विल बी रिलेटिवली लोअर बिकॉज दोनों ही आपका डिजायरेबल है। आपको फॉर एग्जांपल घूमने का मौका मिल रहा है, मालदीव्स में जा सकते हो, मॉरिशस भी, और दोनों जाने का मन है, लेकिन आपको एक चूज करना है, फ्री है, आपको एक कंपनी ने बोल दिया आप यहाँ चले जाओ या यहाँ चले जाओ, और दोनों बहुत बढ़िया पैकेज है। हाउ डू यू चूज बिटवीन मॉरिशस एंड मालदीव? दैट मे स्टिल बी ईजियर, बट इन सर्टन अदर केसेस दिस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट itself can create a lot of stress. So that's one type. Second type is avoidance conflict. मतलब ना ऑप्शन ए पसंद है ना ऑप्शन बी पसंद है। इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में आपको मन करता दोनों ऑप्शन ना ले। फॉर एग्जांपल, आप उदाहरण के लिए आप जंगल में घूमने गए, वहाँ पे आपने कबीले के सरदार ने आपको पकड़ लिया क्योंकि आपने कबीले के सरदार की लड़की को छेड़ दिया। अब कबीले के सरदार ने आपको एक ऑप्शन दिया, या तो दाहिना हाथ कटवा लो या बाएं हाथ कटवा लो, एक ऑप्शन है। अब आप बताओ, ना आप दाहिना कटवाना चाहते हो बायां, फिर आप बड़ा मन लगा के ऐसे ऐसे, उसने बोल दिया भैया एक तो कटवाना पड़ेगा, तो फिर लास्ट में आपने बोला ठीक है बाएं ही काट दो, कम से कम दाहिना मेरा मास्टर हैंड रहेगा, जबकि आप दोनों नहीं चाहिए थे। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे ना ऑप्शन ए पसंद है ना ऑप्शन बी, लेकिन आपको चुनाव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ खाई एक तरफ खड्डा, आप एक ब्रिज से जा रहे हो, सामने से शेर आ रहा है, या तो आप इस साइड कूद सकते हो या इस साइड, एक साइड खाई है एक साइड गहरा गड्ढा है, कहाँ कूदो? दोनों में कूदोगे टांग टूटेगा, लेकिन कूदना तो पड़ेगा क्योंकि आगे से शेर आ रहा है। सो दीज आर डिफिकल्ट चॉइसेस और इसमें स्ट्रेस लेवल्स आर मच मोर हायर। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू सीवियर डिप्रेशन, ही इज कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। एक साइड से वो जीना नहीं चाहता, सुसाइड करना चाहता, दूसरा साइड से सुसाइड करने से डर भी लगता है। ही हैज टू चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शन। हाउ डू यू डू इट? दैट्स avoidance conflict. I'm not trying to say कि this is a way to solve it, but the point is I'm just to give you an example. तो इस तरह के केस में दोनों ऑप्शन आपको पसंद नहीं आ रहा, but you are forced to choose one. So we'll see that. Next is approach avoidance conflict. इसका मतलब क्या है? ये एक ही टाइम में आपको अप्रोच भी करने का मन कर रहा है और अवॉइड भी, मतलब आपको ये काम करने का भी मन कर रहा है, नहीं भी करने का मन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक, आपकी एक गर्लफ्रेंड है पिंकी। अब आप और पिंकी बहुत आपस में चाहते हो और शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं, इस शादी से हम खुश नहीं हैं, अगर वो करना है, शादी करना है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। नाउ दिस इज ए अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक साइड में मन बोलता है नहीं पिंकी से शादी करना है, रिंकी से शादी, जो भी है पिंकी से शादी करना है, और दूसरे साइड से अरे ये मैंने शादी कर लिया तो माँ बाप मुझे छोड़ देंगे, अब मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा। अब दूसरे साइड से अगर मैं माँ बाप को पकड़ता हूँ तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो आपके मन में एक द्वंद्व आ गया कि ऑप्शन ए करूँ तो बी छूट जाएगा, बी करूँ तो ए छूट जाएगा, जबकि आपका मन क्या है? दिस काइंड ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन है हु वांट्स टू गेट मैरिड फॉर द सिक्योरिटी रीजन कि मेरा हस्बैंड के साथ रहूँगी तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा, आजकल तो खैर लेडीज़ भी फाइनेंशियली सिक्योर हो गया, इमोशनल सिक्योरिटी होगा, कंपेनियनशिप होगा। एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो फियरफुल ऑफ लूजिंग अ पर्सनल फ्रीडम कि आज जो मेरी आज़ादी है, आज जो मेरा फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज मैं एक दाम्पत्य जीवन में बन जाऊंगी तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे। सो शी इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट कि शादी करना भी चाहती है और फ्रीडम खोना भी नहीं चाहती। दिस इज कॉल्ड अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सेकेंड इज मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल चीज़ों को आप अप्रोच करना चाहते हो, मल्टीपल रीजंस से उसको अवॉइड भी करना चाहते हो। दीज आर मोर कॉम्प्लेक्स कॉसेस, और इसमें आपके क्या बोलते हैं, लाइफ में बहुत सारे टाइप के इंसिडेंट्स आएंगे जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, समझ में नहीं आएगा ये लेना ये लेना वो लेना। चाइनीज़ सामान सस्ता है लेकिन चाइनीज़ है, मैं चाइना को पसंद नहीं करता। हिंदुस्तानी सामान हिंदुस्तानी है लेकिन महंगा है, मैं महंगे के पीछे जाऊं या चाइनीज़ के पीछे जाऊं। कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं बहुत सारे, विल सी ऑल दैट थिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट जैसा भी हो, कॉन्फ्लिक्ट जैसा भी हो, when conflict is mismanaged, अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज ना कर पाए तो इट कैन कॉज ग्रेट हार्म टू रिलेशनशिप। एंड उसी जगह में अगर इफ इट इज़ हैंडल्ड appropriately, handled carefully, it can provide a opportunity to learn and strengthen our relationship, or whether it is professional, personal or friendship, सामाजिक हो। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि हमें सीखना है, बिकॉज ये हमारे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आए दिन आता रहता है। मुझे बताना कि आप लोगों को ये जो मैंने बोला कि आप अपने लाइफ से इसको रिलेट करके कोई एग्जांपल बता सकते हो जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है। आए दिन आता है, आए दिन आता है। होटल में चले जाओ, मेन्यू कार्ड देखा तो पता नहीं सब्जी ये खरीदूँ ये खरीदूँ वो खरीदूँ ये खरीदूँ, फिर वो बोलता है आप बोलो क्या खरीदना है, फिर वो बोलता नहीं तुम डिसाइड करो। व्हाट इज इट? दिस इज अ स्मॉल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो वॉट एवर बी द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट और द रूट कॉज बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, if we can learn the skills to resolve these conflict resolution skills सीख जाए तो इससे हमारा प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप बना रहता है और हमारा ग्रोथ होता रहता है। लेकिन अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल नहीं डेवलप किया तो इससे भी सफ़र बोथ इन आवर पर्सनल लाइफ एंड इन प्रोफेशनल लाइफ। मेनी मैरिजेस आर टुडे ब्रेकिंग बिकॉज वी डोंट नो द आर्ट ऑफ रिजॉल्विंग आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे बीच के जो मतभेद है उन्हें हम कैसे डिस्कस करके सॉल्व करना ये नहीं जानने के कारण हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल, एंड SML में जब आप आओगे तो इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। नाउ देर आर सर्टन हेल्दी वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड अनहेल्दी वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो ज़रा इसको मैं एक एक करके बताऊंगा, आप मुझे बताना कि आपके स्किल्स कैसे हैं, है ना। वेदर आपका फॉर एग्जांपल आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल, करंट अफेयर्स वीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस को नीचे कर रहा है। अब आपके पास है कि या तो आप कंफर्ट जोन में रह के तैयारी कर लो और या कंफर्ट जोन के बाहर जाके ग्रोथ जोन पे चला जाओ। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर जाने से आपका पूरा जो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बिकॉज आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करके सफलता पाना है या बिना मेहनत किए टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के साथ, दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। सो हेल्दी एंड अनहेल्दी वेज, फॉर एग्जाम्पल if your inability, if you are not able to recognize and respond to the things that matter to the other person, मतलब आप जब अपने कॉन्फ्लिक्ट में होते हो तो दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतों को नाप समझे बिना जब बिहेव करते हो, दैट इज़ डेफिनेटली अनहेल्दी, बिकॉज उसमें कॉन्फ्लिक्ट घटने की जगह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसी जगह में when you have the capacity to empathize with other person's viewpoint, it becomes easy for you to remain flexible, remain पेशेंस, टॉलरेंस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हो। तो अगर आप ये ग्रीन वाले हो तो डेफिनेटली यू हैव ए बेटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल एज कंपेयर टू दिस रेड वाला। तो मुझे बताना क्या आप में वो क्षमता है जहाँ पे आप दूसरों के ज़रूरतों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ एम्पथाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। उसी तरह से अगर आप बहुत एक्सप्लोसिव हो, रिएक्टिव हो, बहुत गुस्से वाले हो, हर्ट कर देते हो, दूसरों को इतना दर्द पहुंचा देते हो, आप रेजेंटफुल हो, आप जेलसी में आ जाते हो, आप बदले की भावना से काम करते हो, दिस इज़ नेचुरली अनहेल्दी वे ऑफ डीलिंग विथ योर कॉन्फ्लिक्ट्स। उसी जगह में अगर आप शांत चित्त हो, नॉन डिफेंसिव, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ नहीं करते, अपनी गलतियों को समझते हो और कॉन्फ्लिक्ट में भी दूसरे को रेस्पेक्ट कर पाते हो, यू डेफिनेटली आर ए मोर डिज़ायरेबल पर्सन in terms of conflict resolution skill, and that definitely will put you into a better position in terms of your ability to lead others, because आप conflict की परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिरता के साथ रख पाते हो ना। This is simply called your ability to love and tolerate, सहनशीलता, the ability to respond to both external and internal situations or events constructively
and not getting adversely affected by them even when you are in a state of conflict. द्वंद्व में होते हुए भी शांत रह के उसे डील कर पाने की क्षमता, इसे हमें डेवलप करना है. नेक्स्ट इज withdrawal of love resulting in rejection, isolation, shaming and fear of abandonment. मतलब जब आप कॉन्फ्लिक्ट में आते हो तो आप क्या करते हो, अपने दूसरे के प्रति स्नेह को और सम्मान को विड्रॉ कर लेते हो, उनसे बात नहीं करते, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, उनको दर्द पहुंचाने वाला कम्युनिकेशन करते हो, उनको रिजेक्ट करते हो, उनको आइसोलेट करते हो, उनको शेम करते हो, उनको लेट डाउन करते हो और उन्हें छोड़ देने की धमकी देते हो. इस तरह का टेंडेंसी जो है ये आपका बहुत इनसिक्योर बिहेवियर को दर्शाता है एंड दिस शोज पुअर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल. इनफैक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जगह आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर बन जाते हो एंड दैट्स वेरी डैमेजिंग टू एनी रिलेशनशिप, बी इट पर्सनल और professional. Many marriages suffer because one partner is not able to handle his or her emotion and treat the other person with so much of insensitivity कि वो रिश्ता टूट ही जाता है. It goes beyond repair. So I don't know whether you understand it or not. The withdrawal of love resulting in rejection, isolation, shaming, fear of being left alone, छोड़ के चले जाना. So those kind of a thing. So do you also do this? कि आपके अंदर भी इस तरह की टेंडेंसी है, चेक करो. और दूसरा है ए रेडीनेस टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब पास घटनाओं को भूल जाने की क्षमता, माफ़ करने की क्षमता, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उसको करेक्ट कर पाने की क्षमता, ना कि दूसरों को ब्लेम करते रहो. ना रेडीनेस टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड टू मूव पास द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट होल्डिंग रिजेंटमेंट और एंगर. पुरानी बातों को ना पकड़ के पाना. लेकिन ये एक बंदा करता रहे दूसरा ना करे तब नहीं चलेगा. इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. सो योर एबिलिटी टू पैक अप एंड लेट गो, पुरानी बातों को भूल जाना, खुद को भी माफ़ करना, दूसरों को भी माफ़ करना, ओपन कम्युनिकेशन, अगर ये सब रिश्तों में रख पाते हो, ये सब रिलेशनशिप में हम रख पाते हो तो नेचुरली इससे हमारा ओवर थिंकिंग, जो वेस्टफुल थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, इस लूप से हम बचे जा सकते हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग थिंग्स टू एन एंड. अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पूर्ण विराम लगा के, बजाय कि इसके कि who wins and who lose. If you see what is better for our relationship, we can deal our conflicts much more better. This is a skill that can be learned. Next is an inability to compromise or see the other person's side. अपने बात पे अड़ के adamant हो जाना, lack of फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन की कमी, विचारों में रिजिडिटी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर रिजिड रहना, अकड़ूपन, ये सब रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाता है और ये बहुत डैमेजिंग होता है. उसी जगह में द एबिलिटी टू सी कॉम्प्रोमाइज एंड अवॉइड पनिशिंग, है ना, एक बीच का रास्ता निकाल पाने की क्षमता, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अड़ जाना. उससे बहुत ही एक इनसिक्योर रिलेशनशिप में आप चले जाओगे और आप अपने रिश्तों की कदर नहीं कर पाओगे. सो द पावर टू एकोमोडेट, समाने की शक्ति, है ना. आपके साथ अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, सबके अलग अलग डिज़ायर्स होंगे. इन सब का इन सब को समझकर इन सब को एक साथ ले जाने की क्षमता. जिस तरह से नदी में, एक बहती हुई नदी में बहुत टाइप के नाले आते हैं, अच्छे भी गंदे, उन सबको डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं. सो टीम स्पिरिट की भावना, एक सहयोग की भावना से लेकर जाने की क्षमता. So that has to be developed. Next is feeling fearful or avoiding conflict, expecting a bad outcome. कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल ना करने की बजाय कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात ही ना करना, उसको कारपेट के नीचे डाल देना, उसको अवॉइड करना, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना और फिर वो बाद में बड़ा होकर एकदम फट जाता है, वो भी बहुत डेंजरस है. अगर आपको दिखता देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यू मस्ट हैव द करेज टू वॉक अप टू योर पार्टनर, टू योर फ्रेंड एंड डिस्कस इट ओपनली. इट मे बी मोमेंटली डिस्कम्फर्टिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिस विल हील आवर रिलेशनशिप. मेनी पीपल दे आर नॉट एबल टू डू इट. और क्या करते हैं, वो अपने अंदर सप्रेस करते रहते और एक दिन ऐसा फटते हैं कि पूरा रिश्ता ही ख़राब कर देते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल. अगर ऐसा आप करते हो तो you must have the power to face your inner conflicts, both internal and external. Many times external conflict में दूसरे लोग भी होते हैं, लेकिन आपके अंदर आपके अंदर के conflicts को आपको handle करना आना चाहिए, वरना your life can become extremely messy. We will lose a lot of opportunity, we will lose good relationship because we don't know the art of
handling our own inner conflicts. So it is the ability to confront and resolve external and internal obstacle, tests and challenges that one faces and the conflicts that one faces, उसका सीधा सामना करके उसके रिजॉल्व करो, बजाय कि उसको दबा के रखो 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 और एक दिन फट जाओ और पूरा ही नुकसान कर दो. So the belief that facing a conflict head on is the best thing for both parties rather than avoiding it and hoping कि ये ठीक हो जाएगा. तो मुझे बताना आपका कोपिंग स्किल क्या है. नाउ दोस्त ऑफ यू गोइंग फॉर दी सिविल सर्विसेज और फॉर दी एसएसबी इंटरव्यू, वहाँ पे भी आपका ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट आपके प्रिपरेशन में भी आपको बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे जो आपको शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा देंगे 5 दिन में, जो लोग आपको सुसाइडल टेंडेंसी को भी छुपाने की ट्रेनिंग दे देंगे. अब आपके ऊपर है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो आसान लगता वो सही है या एक अपने ऊपर काम करके उस डेफिशिएंसी को पूरा करना क्या आपके लिए बेहतर होगा. वो कॉन्फ्लिक्ट आपको ठीक करना पड़ेगा. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो उसे ठीक करने में फ़ायदा है या उसे ऐसे रख के आई एग्री विथ यू बोलने में फ़ायदा है. किसी के रटे हुए कहानियों को लिखना अच्छा है या अपनी सोच को डेवलप करना, दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट दैट यू हैव टू डू. सो जैसे ये YLC का सिलेबस है, इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग एंड देखो लर्निंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन स्किल, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व मेजर स्किल. सो दिस हैज़ टू बी डेवलप. और आपको पता होगा SSB में भी बहुत टाइप के पिक्चर्स दिखाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर में TAT में ये पिक्चर है तो यहाँ पे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है. तो जब आपसे पूछा जाता है व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, एक्चुअली व्हाट आर वी आस्किंग इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. एंड अंत में आप किस आउटकम पे आओगे. देखो इसमें इट्स 2 पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट. इसमें एक प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, पहला में खुद ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट में, दूसरे पिक्चर में आपस में है, तीसरे में भी आपस में है, दूसरा पिक्चर पर्सनल लाइफ का है, तीसरा पिक्चर प्रोफेशनल लाइफ का है. But conflict is a conflict. So if you know the art of resolving conflict, आपका internal हो, external हो, professional हो, personal हो, friends के साथ हो, you will know how to handle it. तो मैं आप लोगों को ये पिक्चर दिखा रहा हूँ. इसमें भी आप देखोगे 2 लोग हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. डेफिनेटली वी डोंट नो द रीज़न बट दैट यू विल बी टेलिंग एज पार्ट ऑफ व्हाट लेड टू द सिचुएशन. एंड what is currently happening is a portion where you'll resolve the conflict and show us your conflict resolution skill and what is the final outcome में आप जो है इस conflict का अंत दिखाओगे कि कैसे पहुंचा. और इन द प्रोसेस जब हम ये समझेंगे तब इससे हमें ये पता चलेगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल कितना डेवलप्ड है, एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है. अगर आप 10+2 TS है, नेचुरली आप बच्चे हो, आपकी क्षमता लिमिटेड होगी. लेकिन आप CDS हो, ACC वाले हो, 10+2 TS हो, सर्विस एंट्री हो, तो आपका ये स्किल डेवलप हुआ होगा. उम्मीद है अगर होगा तो आपके रिस्पॉन्स में आएगा. तो ये कोई रोट मेमोरी बेस करने की नहीं है, ये आपका कैपेबिलिटी है जो हम देखना चाहते हैं. और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इमोशनल अवेयरनेस पता होना चाहिए. इमोशनल अवेयरनेस मतलब इनकी मानसिक अवस्था की समझ होनी चाहिए. उसके लिए आपको इस पिक्चर को जीवन से जोड़ना पड़ेगा. सो इमोशनल अवेयरनेस क्या है? इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स. इफ़ यू डोंट नो हाउ एंड वाई यू फील इन अ सर्टन वे, यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली और रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पार्टीज. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी मानसा को इस्तेमाल करके आप इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करोगे. बट याद रखना इनका जो भी हीरो हीरोइन का एक्शन है वो आपकी सोच को दर्शाता है. और इस टाइप के पिक्चर्स में हम आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल देखना चाहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे रिजॉल्व करते हो. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस पिक्चर के ऊपर एक कहानी लिख के यहाँ पे पोस्ट करो और आगे हम इसको अगले वीक में आपके कहानियों को भी लेंगे और एक सैम्पल कहानी मैं अभी दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी हम करके हम देखेंगे किस तरह से इमोशनल रेजिलियंस या इमोशनल क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल आप दिखा रहे हो. नाउ इस टाइप के इमोशनल पिक्चर्स में आपका सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और कुछ चीज़ें जो हम साइकोलॉजिस्ट में देखते हैं वो है आपका फ्लक्चुएटिंग मेंटालिटी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इमोशन का फ्लक्चुएशन है. तो आप इमोशनल के फ्लक्चुएशन में कितनी स्टेबिलिटी ला सकते हो और किस तरह से आप इन घटनाओं पे अपना रिस्पॉन्स देते हो. नेक्स्ट इज एक्सट्रीम एंड डिप्रेसिव टेंडेंसीज अगर आप में हैं वो भी यहाँ पे निकल के आता है. तो जैसे किसी कोचिंग ने बोला कि सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर दो, मुश्किल है उसको हाइड करना, सर ने गलत बोला है ना. नेक्स्ट इज लाइवलीनेस, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर्स एंड सेटबैक है ना. एंड ऑल्सो योर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी का भी यहाँ पे पता चलता है. आपका मेंटल स्टेमिना,
मानसिक रूप से आप कितना तनाव को सह सकते हो वो भी पता चलता है। कुछ लोग टूट जाते हैं। नेक्स्ट इज सुसाइडल टेंडेंसी, से आप हाइड नहीं कर सकते, जैसे नागपुर में बताया जाता है कि इसे हाइड कर दो, नहीं हाइड नहीं कर सकते, इसको आपको डेवलप कर सकते हो सकता है आप एसएसबी में सेलेक्ट ना हो, बट इतना डेवलप कर सकते हैं कि आपको लाइफ में कम से कम आप डील कर पाओ। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टर वीकनेस, अगर आपके चरित्र में कोई वीकनेस है, वैल्यू डेविएशंस है, वो भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं अगले स्टोरी में दिखाऊंगा। एंड इस पूरे प्रोसेस से आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल कितना डेवलप्ड है वो भी बहुत अच्छे से पता चलता है। तो इसी पिक्चर के ऊपर एक ये CDS के लड़के का एक स्टोरी है, मैं इसको जल्दी से पढ़ के बताता हूँ और आप मुझे इसमें बताना कि इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल क्या दिखा है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, किस तरह से रिजॉल्व किया है, क्या एक एक्सेप्टेबल स्टोरी बनता है नहीं बनता है, इसमें कहीं कैरेक्टर वीकनेस तो नहीं है, क्या OLQ है, इसमें हीरो कौन है, किस बंदे की क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इस पिक्चर के ऊपर है, लिखता है सुमा इज़ अ 24-year-old गर्ल, तो एक 24 साल की लड़की की कहानी है। एंड हर हस्बैंड टोल्ड हर टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज बॉस बिकॉज ही वांट्स प्रमोशन। तो हस्बैंड का वांट क्या है, प्रमोशन, ये उसकी नीड है और इस नीड को पूरा करने के लिए उसने तरीका क्या लगाया, अपनी पत्नी सुमा को बोलता है कि मेरे बॉस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ। यू कैन सी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, है ना, एंड यू कैन सी बॉस के साथ उस बंदे का रिलेशनशिप कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है। बॉस को इन्वॉल्व किया, बॉस के साथ अपनी पत्नी का। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही लिखा है शी है ना, जब शी गोज टू हर हस्बैंड, इसका मतलब अंडर प्रेशर इसने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया, उसके पति की बात मान के बॉस के पास चली गई। मतलब इसको समझा नहीं पाई कि मैं ये करूँगी या नहीं करूँगी, समझा नहीं पाई। हिज बॉस टोटली, पता नहीं डन लिखा था, रिफ्यूज टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हर। तो बॉस ने इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को मना कर दिया। बॉस इज एन एक्सटर्नल कैरेक्टर। And he told her that I want to see your husband's behavior because I have a doubt he is not a good person। मतलब इस बंदे का कैरेक्टर वीकनेस है, ये बॉस को शक था और उसको देखने के लिए बॉस ने इसको बोला कि तेरे को प्रमोशन चाहिए तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दे, और इसने भेज दिया और उसने सेक्स करने के बजाय उसको ज्ञान दे रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। आई हैव अ डाउट दैट ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन बिकॉज आई ऑल्सो so many complaints from काट दिया। he can do anything for the promotion, बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड अपने प्रमोशन के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, यानी मीन्स अडॉप्टेड। वो कोर क्वालिटी को हाइड कर सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड कर सकता है, वो डेड बॉडी का ड्रामा बना सकता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक उसी तरह से तुम्हारा हस्बैंड भी अपने प्रमोशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आप भी बताओ कि आप एसएसबी में रेकमेंड होने के लिए क्या कुछ भी करोगे या अपने आप को डेवलप करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स करोगे या सेल्फ डेवलपमेंट करोगे। मुझे ये लिख के बताना कि अगर आप में कोई कमी है तो उसको कैसे भरते हो, कुछ भी करके टिप्स एंड ट्रिक्स, सुसाइडल टेंडेंसी को हाइड करके या रटे हुए नोट्स रट के या अपने आप को डेवलप करके क्या करते हो मुझे बताना। सो आई गिव यू अ सजेशन, प्लीज़ लीव योर हस्बैंड। तो अपने पत्नी को सजेस्ट करता है तुम अपने पति को छोड़ दो। तो मुझे बताना इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या वैल्यू सिस्टम निकल के आ रहा है इस कैंडिडेट का, क्या मोटिवेशन है, क्या परसेप्शन है उसका जीवन की तरफ, क्या आइडिया है, क्या इसके ओपिनियन है, क्या डिज़ायर्स है, क्या नीड है। इसमें क्लियरली प्रमोशन चाहिए बट द मीन्स अडॉप्टेड गलत आ रहा है। तो इसके ऊपर मुझे कमेंट लिख के बताना कि किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है और उस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट में वैल्यू डेविएशन आ रहा है, क्या ऐसा पति या और ऐसी पत्नी और ऐसा बॉस बनाने वाला व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट रेकमेंड करेगा, मुझे बताना। और क्या ये ऊपर से इसको काट के इन चीज़ों को छुपाने से इसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर मुझे कमेंट लिख के ज़रूर बताना। और इसके ऊपर आपके कमेंट्स के बेस में हम आगे इसको और लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वेट फॉर योर कमेंट्स। जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप एंड कॉम्पोजिट बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। अगला बैच जो इमीडिएट बैच है वो 19 जुलाई से है। आपके पास ओनली 2 वीक्स का SML ऑप्शन भी है एंड ओनली 2 वीक्स का
SSB ऑप्शन भी है और कॉम्पोजिट बैच का ऑप्शन भी है। उस सब चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। क्लास टाइमिंग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का 6:15 to 8:15, SSB का 9:30 to 11:30 एंड उसके अलावा ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस जो इसके साथ फ्री में है उसको आप सेपरेट भी ले सकते हो, जो कि 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगा रात को हर दिन। और ये जब तक आपका कोर्स है तब तक, और उसके बाद भी 1 महीना आपको ये कोर्स ऑफर किया जाएगा ताकि आप मेरे साथ लंबे टाइम के लिए रह पाओ। सो उसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए 8275577650 पे व्हाट्सअप करना। 500% क्लैरिटी का वादा है। क्लैरिटी जब तक नहीं होगा, आपके एफर्ट्स में अलाइनमेंट नहीं आएगा, आप घूमते रह जाओगे। तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट से निकलना पड़ेगा कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का शॉर्टकट चाहिए या एक सही रास्ता चाहिए। सही रास्ते में मेहनत है, वहाँ पे मेहनत नहीं है, लेकिन आपको उलझा के रख देंगे। तो इस बारे में सोचना और मुझे ज़रूर इस वीडियो के ऊपर फीडबैक देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। And hope to see you on 19 July 2021 for the composite batch, both SSB and SML. And thank you and may God bless you. Thank you very much.